नमस्कार। वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। कलेक्ट्रेट में मनाया गया प्रजा पालना दिवस। मंत्री सीता अक्का ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। आईटी मिनिस्टर श्रीधर बाबू ने बीआरएस नेताओं की टिप्पणी पर करी प्रतिक्रिया दी। राजीव गांधी की प्रतिमा हटाने की कोशिशों को बताया राजनीतिक नाटक। तेलंगाना परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई। 6,916 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित। सड़क सुरक्षा उल्लंघनों के खिलाफ उठाया कदम। चिंताजनक आंकड़े आए सामने। विधानसभा चुनाव का पहला चरण, 24 सीटों पर वोटिंग। कांग्रेस नेताओं ने की अपील। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का किया आग्रह। अजय माकन ने भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज करवाए पुलिस शिकायत। राहुल गांधी को धमकी देने के आरोप में कई भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हमास के प्रमुख यहया सिनवार का इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान। संसाधनों की उपलब्धता की पुष्टि। अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना सरकार ने राज्य में पीपल्स गवर्नेंस डे को भव्य तरीके से मनाया। मुख्य समारोह पब्लिक गार्डन नामपल्ली में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, पुलिस से सलामी ली और संबोधन दिया। समारोह से पहले उन्होंने गन पार्क में तेलंगाना के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर को पीपल्स रूल डे के रूप में मनाना एक महत्वपूर्ण निर्णय है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना के संघर्ष का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करना मूर्खतापूर्ण है। రాచరిక వ్యవస్థను ముట్టడించి తెలంగాణ బానిస సంఖ్యలు తెంచిన చారిత్రాత్మక ఘట్టం 1948 సెప్టెంబర్ 17న ఇదే హైదరాబాదు గడ్డపై ఆవిష్కృతమైంది. ఒక ప్రాంతానికో ఒక కులానికో ఒక మతానికో వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటం కాదు ఇది. ఒక జాతి తన స్వేచ్ఛ కోసం, ఆత్మ గౌరవం కోసం రాచరిక పోకడలపై చేసిన తిరుగుబాటు. తెలంగాణ అంటే త్యాగం. ఈ త్యాగాలకు ఆద్యుడు దొడ్డి కొమరయ్య లాంటి ఎంతో మంది వీరులు తమ ప్రాణాలను ఒడ్డి సాయుధ పోరాటానికి ఊపిరి పోసిన గొప్ప వ్యక్తులు దొడ్డి కొమరయ్యతో పాటు ఎంతో మంది వీరులు. నాటి సాయుధ పోరాటంలో ఎందరో ప్రాణ త్యాగాలు చేశారు, జీవితాలు త్యాగం చేశారు. సర్వం కోల్పోయిన లక్ష్య సాధనలో వెనుకంజ వేయలేదు. ఆనాటి సాయుధ పోరాటంలో ప్రాణాలు వదిలిన అమర వీరులకు ఈ సందర్భంగా ఘనమైన నివాళిని అర్పిస్తున్నాను. 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు ప్రజాపాలన దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. సెప్టెంబర్ 17 తెలంగాణ ప్రస్థానంలో అత్యంత కీలకమైన రోజు. ఈ శుభదినాన్ని ఎలా నిర్వహించుకోవాలన్న విషయంలో ఇప్పటి వరకు భిన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. కొందరు విలీన దినోత్సవం అని, కొందరు విమోచన దినోత్సవం అని సంబోధిస్తున్నారు. ప్రజాప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సెప్టెంబర్ 17ను అధికారికంగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించినాం. లోతైన ఆలోచన ప్రజాపాలన దినోత్సవంగా సెప్టెంబర్ 17న జరుపుకోవడం సముచితంగా ఉంటుందని మేమందరం భావించాం. సెప్టెంబర్ 17 1948 నాడు తెలంగాణ ప్రజలు నిజాం రాచరిక వ్యవస్థను కూలదోసి ప్రజాస్వామ్య ప్రస్థానానికి నాంది పలికారు. ఇది తెలంగాణ ప్రజల విజయం. ఇందులో రాజకీయాలకు తావు లేదు. రాజకీయ ప్రయోజన కోణంలో దీనిని చూడటం అవివేకం అవుతుంది. విలీనమని ఒకరు, విమోచనమని మరొకరు స్వప్రయోజనాల కోసం నాటి అమరుల త్యాగాలను పలుచన చేసేలా ప్రవర్తించడం సరికాదని ప్రజాప్రభుత్వం భావిస్తుంది.
అందుకే ఈ శుభ దినానికి ప్రజా కోణాన్ని జోడిస్తూ ప్రజా పాలన దినోత్సవంగా నామకరణం చేశాం. ప్రజా ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం 4 కోట్ల ప్రజల యొక్క ఆకాంక్ష, వారి ఆలోచన, నాటి తెలంగాణ సాయుధ పోరాట స్ఫూర్తి. ఈ నిర్ణయాన్ని ఎవరైనా తప్పుపడితే వారికి స్వార్థ ప్రయోజనమే అవుతుంది తప్ప ప్రజాహితం కాబోదు. ఇందులో మా స్వార్థం లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసమో మా వ్యక్తిగత ఆకాంక్షలతో చేసిన నిర్ణయమో కాదు. మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే తెలంగాణ భౌగోళిక స్వరూపం బిగించిన పిడికిలి మాదిరిగా ఉంటుంది. పిడికిలి పోరాటానికి సింబల్. అంతేకాదు 5 వేళ్లు బిగిస్తే పిడికిలి. తెలంగాణలో అన్ని జాతులు, అన్ని కులాలు, మతాలు కలిసికట్టుగా ఉంటాయన్న సందేశం ఇందులో ఇమిడి ఉంది. ఈ ఐక్యతను, ఈ సమైక్యతను దెబ్బతీసే విధంగా సెప్టెంబర్ 17ను కొందరు వివాదాస్పదం చేసే ప్రయత్నం క్షమించరాని విషయం. బిగించిన పిడికిలి కొండలనైనా పిండి చేయగలదు. ఐక్యంగా సమైక్యంగా ఉండే తెలంగాణకు బిగించిన పిడికిలి ఉన్నంత శక్తి ఉంది. ఇది 4 కోట్ల ప్రజల పిడికిలి. ఇది ఎప్పటికీ मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रजापालना दिवस का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री धनसारी अनसुईया सीताक्का ने मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर दिवाकर, TSSP और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। मंत्री ने 17 सितंबर और प्रजापालना दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। జరగాలంటే మరి అధికారుల యొక్క కృషి, పట్టుదల, సేవా దృక్పథం ఉంటే తప్ప మనం అభివృద్ధి పదంలోకి వెళ్ళలేము. అదేవిధంగా మండలాల్లో కూడా మీ ఆధీనంలో, మీ శాఖలలో ఉన్నటువంటి అధికారులు మొన్న ఫ్లడ్స్లలో ఎవరెవరైతే యాక్టివ్గా పనిచేసిండ్రో వారిని కూడా మండలాల వారీగా మరి గౌరవించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కష్టపడ్డటువంటి వాళ్ళ గుర్తింపు తప్పకుండా ఉండాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో కలెక్టర్ గారు నేను అనుకొని మరి రాష్ట్రంలో వరదలు ఎక్కడొచ్చినా మన ములుగులో వరదలు వచ్చినట్టుగానే భావిస్తూ దాదాపు 2 నెలలు 3 నెలల నుంచి మేము నిరంతరం అలర్ట్గా ఉండడం, అదేవిధంగా ఎప్పటికప్పుడు ప్రణాళికలు చేసుకుంటూ ఈసారి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా విజయవంతంగా ఈ వరద కాలం నుంచి మన ములుగు జిల్లాను, ములుగు నియోజకవర్గాన్ని కాపాడుకోవడంలో జిల్లా ఎంత IT और उद्योग मंत्री श्रीधर बाबू ने BRS नेताओं की उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने सचिवालय में स्थापित स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा को हटाने की बात कही थी। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने आरोप लगाया कि ये कदम केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को खुश करने के लिए उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने लोगों से इस विषय पर सोचने का आग्रह किया। ये कहते हुए कि राजीव गांधी को तकनीकी क्रांति का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि राजीव गांधी के नेतृत्व में 18 साल के बच्चों को वोट देने का अधिकार मिला और सोनिया गांधी ने तेलंगाना की आकांक्षाओं को पूरा किया है। श्रीधर बाबू ने स्पष्ट किया कि जो लोग देश के लिए बलिदान देने का अर्थ नहीं जानते वही प्रतिमा को लेकर विवाद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि तेलंगाना तल्ली की एक नई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और कर्ज माफी के प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के आर्थिक संसाधनों को भली भांति समझते हैं और तेलंगाना की अर्थव्यवस्था में योगदान महत्वपूर्ण हो गया है। तेलंगाना परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2024 के बीच 6,916 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। ये कार्रवाई तेज गति, नशे में गाड़ी चलाना, माल वाहनों में यात्रियों को ले जाना, दिशा में गाड़ी चलाना और ओवरलोडिंग जैसे गंभीर उल्लंघनों के आधार पर की गई है। राज्य के सड़क सुरक्षा आंकड़े अत्यंत चिंताजनक है। पिछले 5 वर्षों में घातक दुर्घटनाओं के कारण 21,745 पुरुषों और 13,308 महिलाओं की जान गई है, जो प्रतिदिन औसतन 20 मौतों को दर्शाता है। प्रभावित होने वालों में अधिकांश की उम्र 25 से 45 वर्ष के बीच है, जो कामकाजी उम्र के लोगों पर गंभीर प्रभाव डालता है।
आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य की जनता से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। राहुल गांधी ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, रोजगार के अवसरों के निर्माण, महिलाओं के सशक्तिकरण और राज्य के समृद्धि के लिए बड़ी संख्या में मतदान करना चाहिए। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वह केंद्र शासित प्रदेश में शांति, स्थिरता, न्याय और विकास के लिए वोट करे। कश्मीर में बनेगी। जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो अमन चाहती है, चैन चाहती है, सुख चैन चाहती है और यहाँ के विकास की रणनीति को अपनाएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो है वो जीत जो है वो निश्चित है। आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है और काफी हद तक आतंकवाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है, लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं इन्होंने हमेशा समाज को तोड़ने की बातें की है, समाज को बांटने की बातें की है और आगे जो है इनका पत्ता साफ होने वाला है और आतंकवाद भी ये दिए की तरह है जो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त होगा। यहाँ पे हर काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कोई काम आपको बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में नजर मेरी तरफ से वोटर्स से जहां भी आज वोट डाले जा रहे हैं फर्स्ट फेज में कि निकल आए, वोट अपना इस्तेमाल कर लें, वोट डालें। ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, पूरे अवाम के लिए। अमन और अमान कायम रखना बहुत जरूरी है और इसमें कौन जीते कौन हारे वो अवाम आपने ही फैसला करना है, अवाम ने फैसला करना है। Pulwama has been stigmatized. This is an election for us to reclaim the image of Pulwama, the youth of Pulwama, the people of Pulwama, and we are optimistic, we are hopeful with the response of campaign. So we want to, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदाताओं से बड़ी संख्या में बाहर आने की अपील की है। केंद्रीय शासित प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें पहले चरण के तहत 24 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के उद्घाटन के साथ मैं जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतांत्रिक त्यौहार को मजबूत करने की अपील करता हूं। कांग्रेस लीडर अजय माकन ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को धमकी देने के आरोप में कई भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इस मौके पर अजय माकन के साथ अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। माकन ने जिन नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है उनमें त्रिवेंद्र सिंह मारवा, रणवीत बुट्टू, रघुराज सिंह और संजय गायकवाड़ शामिल है। उन्होंने कहा है कि इन नेताओं ने, जिसमें से एक दिल्ली भाजपा का पूर्व विधायक, एक शिवसेना शिंदे सदस्य, एक केंद्रीय मंत्री और एक यूपी मंत्री है, राहुल गांधी के खिलाफ चिंताजनक बयान दिए हैं। अजय माकन ने एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है और इन नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ने दिल्ली में पिछले सप्ताह राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी एक तरीके से दिया था। जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ। हम सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई थी। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को, जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज़्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज़ पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज़ पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं।
इसलिए आप कहते हैं कि उनकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज़, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपने छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज़ कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अक़लियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज़ हमारे नेता उठाते रहेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभालें, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह दो जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहाँ की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की आपने शिकायत की, नाम बता दीजिए। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में FIR होनी चाहिए। मुकदमा भी दर्ज हुआ था, कार्रवाई। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि इस तरीके की टिप्पणी राहुल गांधी जी के खिलाफ में जो करी गई, आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये अप्रत्याशित है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फर्ज बनता है कि राजनीति की गरिमा को बना करके रखें। ये उनके नेताओं का फर्ज बनता है कि राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर वायलेंस को किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। और जान से मारने की धमकी जिस तरीके से खुलेआम दी जा रही है, जुबान काटने की धमकी जिस तरीके से दी जा रही है, आपको कोई बात पसंद नहीं तो आपको किसी की आवाज़, बात पसंद नहीं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजीव भवन कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मंत्री हारून यूसुफ ने आम आदमी पार्टी के हालिया कार्यों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि आपका 3 दिनों का नाटक ईमानदारी का गुणगान कर अरविंद केजरीवाल को भगवान राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने का अभियान जारी है। ये दिल्ली की जनता को गुमराह करने और आगामी विधानसभा चुनाव में सहानुभूति हासिल करने का प्रयास है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारून यूसुफ के साथ संचार विभाग के अध्यक्ष और पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज और पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्लीन चिट दे दी। अगर क्लीन चिट दे दी थी तो क्या जरूरत थी कि आपके ऊपर इतने प्रतिबंध लगाए? और केजरीवाल जी ने सोचा कि ये एक बड़ा सुनहरा मौका है। आज बहुत सारे साथी हमारे पुराने, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, वो अच्छे से जानते हैं कि 2014 में क्या नाटक हुआ था। नाटक ये हुआ था कि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे दिया था क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि हम दिल्ली के अंदर ये 90 पॉइंट हैं, इनके ऊपर काम करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पॉल्यूशन, ट्रांसपोर्ट, तमाम विभागों के बारे में उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। और उस समय जो हमने समर्थन दिया था, मैं CLP का लीडर होता था कांग्रेस पार्टी, तो हमने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि अगर ये सारे काम ये कर सकते हैं तो हम उनको पूरी समर्थन देंगे।
लेकिन केजरीवाल जी भागे क्यों, इसका आपको शायद सबको याद होगा। भागे इसलिए थे कि जन लोकपाल का बहाना लिया गया कि जन लोकपाल पे हम अपोज कर रहे हैं। आज मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि जब असेंबली का सेशन था जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, तो मैं और दिल्ली के पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट को मनीष सिसोदिया जी बुला के लेके गए, और जो बाहर हमारी लॉबी थी उसमें केजरीवाल जी खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जो सब्सिडी वाला जो पोर्शन है उसको पहले क्लियर करा, जिस पर मैंने कहा केजरीवाल जी आपका एजेंडा नंबर 1 जन लोकपाल है। तो केजरीवाल जी का ये कहना था कि जन लोकपाल लोकपाल छोड़ो, आप बाद में जान दो, आप सब्सिडी वाला जो हमारा बिल है उसको क्लियर करो। तो उस पर हमने ये कहा था कि अगर कुछ भी होगा तो बाद में एलजी से कह के करा सकते हैं, लेकिन आप जन लोकपाल पर लैब शुरू करवाइए। और कांग्रेस पार्टी का संपूर्ण समर्थन जन लोकपाल पर था। आज कहाँ है जन लोकपाल? आज 11 साल हो गए शिक्षे को, आज तक जन लोकपाल नहीं आया। ईमानदारी की बात करने वाले जानते थे कि हमको तो बेईमानी करनी है दिल्ली के अंदर, और जिस तरीके से अपने आप को ईमानदारी के खुद ही सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, और सारे आम आदमी पार्टी के नेता, ऐसा लगता है जैसे स्कूल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, सारे आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल जी अच्छे से जानते हैं कि ये वो दिल्ली है तो भूलती नहीं है। दिल्ली के ही लोगों ने हमको 3 मरतबा सरकार में बैठाया और हमने दिल्ली की तस्वीर बदली। वही अरविंद केजरीवाल जो वैगन आर में घुमा करते थे और गरीबी की बात करते थे, अपने शर्ट साइज के 4 नंबर 11 साइज पहन के और फटावा सैंडल पहन के लोगों को ये बताने की कोशिश करते थे कि मैं आप लोगों में से हूँ। लेकिन धीरे धीरे वो नकाम उतरा और ग्लॉस्टर जैसी गाड़ी किया कि 50 लाख रुपए की गाड़ी है वो, जिसमें अरविंद केजरीवाल चलते हैं। और एक काफिला है जिसको कहा था कि मैं न सिक्योरिटी लूंगा न बंगला लूंगा, सिक्योरिटी 4 गाड़ियां और चलती हैं। इसके अलावा शीश महल बनाया है और शीश महल का दिल्ली के गरीब जनता का मजाक उड़ाने के बराबर। मैं समझता हूँ कि गरीब लोगों के मुंह पर तमाचा है, जो झुकी झोपड़ी अनथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, जो आज कीचड़ में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए केजरीवाल जी का एक नया, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा डायरेक्टर है, कौन सा स्क्रिप्ट राइटर है जो इतने अच्छे अच्छे डायलॉग उनको लिख कर दे रहा है। सच्चाई ये है कि जो भ्रष्टाचार दिल्ली में हुआ है पिछले 11 साल, वो तो कहते थे कि कॉर्पोरेशन हमें काम, कॉर्पोरेशन वाले जो है बीजेपी के हमें काम नहीं करने दे रहे। आज तो 2 साल से आपकी कॉर्पोरेशन है। दिल्ली की जो गंदगी है उसका हाल क्या है? उस सबसे पर्दा डालने के लिए जैसे मोदी जी करते हैं ना कि जब झुग्गी वाले आते हैं और बाहर का कोई फॉरेन डेलीगेशन आता है तो पर्दे डाल देते हैं, इसी तरीके से उस तमाम ऐशो आराम पे पर्दे डालने के लिए अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर मैं अपना निवास खाली कर दूंगा, सिक्योरिटी छोड़ दूंगा। मैं ये दोबारा वो नाटक करने के चक्कर में है। लेकिन केजरीवाल जी, ये दिल्ली की जनता जो है बड़ी बाशऊर है। दिल्ली की जनता समझती है आपकी रक्षाओं को, और आप कैसे आपके झांसे में नहीं आने वाले। ये चाहते हैं कि दोबारा वो छोटी गाड़ी, एक इनके मंत्री है वो नहरों में घुमा करते थे, आज देखिए शानदार इनोवा गाड़ी जो है जो तकरीबन 32-33 लाख की है उसमें घूम रहे। अरे कहाँ गए वो वैगन आर, कहाँ गए वो ई रिक्शा है, कहाँ गए वो 3 व्हीलर जहाँ आपके एमएलए कूद कर आते थे विधानसभा के अंदर। हमास के प्रमुख यहया सिनवार ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन मौजूद है। सिनवार ने यमनी हुती सहयोगियों को लिखे एक पत्र में स्पष्ट किया, हमने इस लंबे युद्ध से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। अपने पत्र में सिनवार ने चेतावनी दी है कि गाजा, लिबनान, इराक सहित अन्य क्षेत्रों में ईरान समर्थित समूह दुश्मन के राजनीतिक संकल्प को तोड़ देंगे।
यह बयान इस्माइल हानिया की हत्या के बाद आया है, जो हमास के मजबूत संकल्प और युद्ध की तैयारियों को दर्शाता है। लिबनानी सुरक्षा सूत्रों के अनुसार इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद ने हिजबुल्लाह के लिए ताइवान में निर्मित 5000 पेजर में विस्फोटक लगाए थे। ब्रिटिश समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक वरिष्ठ सुरक्षा सूत्र ने बताया कि हिजबुल्लाह ने ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो से पेजर का ऑर्डर दिया था। हिजबुल्लाह के सैकड़ों सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इन पेजरों में मंगलवार को लेबनान और सीरिया में लगभग एक साथ विस्फोट हुआ। इस घटना में 8 वर्षीय लड़की सहित कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 3000 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें लिबनान में ईरान के राजदूत भी शामिल है। अधिकारियों ने इस रिमोट हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है, जबकि इजरायली सेना ने विस्फोटों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। कई सूत्रों का कहना है कि ये योजना कई महीनों पहले बनाई गई थी। आखिर में हेडलाइंस फिर। कलेक्ट्रेट में मनाया गया प्रजा पालना दिवस, मंत्री सीता अक्का ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। आईटी मिनिस्टर श्रीधर बाबू ने बीआरएस नेताओं की टिप्पणी पर करी प्रतिक्रिया दी। राजीव गांधी के प्रतिमा हटाने की कोशिशों को बताया राजनीतिक नाटक। तेलंगाना परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई, 6916 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित। सड़क सुरक्षा उल्लंघनों के खिलाफ उठाया कदम, चिंताजनक आंकड़े आए सामने। विधानसभा चुनाव का पहला चरण, 24 सीटों पर वोटिंग। कांग्रेस नेताओं ने की अपील। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का किया आग्रह। अजय माकन ने भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज करवाए पुलिस शिकायत। राहुल गांधी को धमकी देने के आरोप में कई भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हमास के प्रमुख यहया सिनवार का इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान, संसाधनों की उपलब्धता की पुष्टि। 1 TB हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।